اب مختصراً تذکرہ کرتے ہیں حضرت یس علیہ السلام اور آپ کے معجزات کے حوالے سے، جو حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام کو حضرت الیاس علیہ السلام کا چچا زاد بھائی بھی بتایا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے بہت سے معجزات بیان کیے جاتے ہیں، جن میں سے چند ایک کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی دعا سے کھارا پانی میٹھا ہو گیا۔ ایک مرتبہ اہل اریحا نے شکایت کی کہ ہمارا پانی کھارا ہے۔ آپ علیہ السلام دعا فرمائیں کہ وہ شیریں ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے کچھ نمک لے کر دریا میں ڈالا تو اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک بار ایک عورت نے افلاس کی شکایت کی۔ خاوند کے قرض کا تذکرہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے عرض کیا، تھوڑا سا گھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے وہ گھی طلب فرمایا اور اسے ایک برتن سے دوسرے برتن میں ڈال دیا۔ عورت نے اپنا گھی الٹا لیا۔ وہ اسی طرح گھی دونوں برتنوں الٹانے لگی تو گھی میں اضافہ ہونے لگا۔ اہل محلہ وہ گھی خریدنے لگے۔ وہ عورت امیر ہو گئی اور اس کا قرض ادا ہو گیا۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت یونس علیہ السلام دجلہ کے بائیں کنارے پر آباد عراقی شہر موصل میں پیدا ہوئے۔ یاد رہے کہ آپ علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ موصل کے مقابل نینوا شہر تھا، جو اس زمانے میں اپنے عروج پر تھا اور وہاں قوم سمود آباد تھی۔ نینوا کی آبادی 1,00,000 سے زیادہ تھی، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ صافات کی آیت نمبر 147 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان یعنی یونس کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل نینوا کی رشد و ہدایت پر مامور فرمایا۔ مفسرین کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کا عہد 741 تا 781 قبل مسیح ہے۔ آپ علیہ السلام کا قرآن کریم کی 6 سورہ مبارکہ میں ذکر آیا ہے: سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ صافات، سورہ انبیاء اور سورہ قلم۔ ان میں پہلی 4 سورہ مبارکہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام اور باقی 2 میں ذی-النون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ نون بڑی مچھلی کو کہتے ہیں۔ چونکہ آپ علیہ السلام کئی دن ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس لیے مچھلی والا کہا گیا۔ اور قرآن کریم کی 10ویں سورت سورہ یونس آپ علیہ السلام کے نام پر ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک نینوا کے لوگوں کو توحید کی دعوت اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں، غرور و تکبر میں مبتلا قوم دیگر نافرمان اقوام کی طرح آپ علیہ السلام کی دعوت کا مذاق بھی اڑاتی رہی۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا۔ یہ سن کر قوم یونس علیہ السلام نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر ان سب کا اتفاق ہوا کہ یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے کہ اگر یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ قصہ مختصر، حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا گیا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں اور توبہ کر لیں، مگر آپ علیہ السلام کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ و استغفار میں لگ گئے اور اپنے گھروں سے ایک میدان میں نکل آئے۔ عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے۔ تمام بستی والے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عجز و انکساری کے ساتھ توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہو بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور عذاب ان سے ہٹا دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا دن تھا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ ان کے توبہ و استغفار کا حال انہیں معلوم نہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو انہیں فکر ہوئی کہ اب تو قوم مجھے جھوٹا قرار دے گی، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ اس قوم کا قانون تھا کہ جس شخص کو جھوٹ معلوم ہو
और वो अपने कलाम पर कोई शहादत पेश ना कर सके तो उसे कत्ल कर दिया जाता। तो यूनुस अलैहिस्सलाम को फिक्र हुई कि उन्हें भी झूठा करार देकर कत्ल कर दिया जाएगा। इस रंजो गम और परेशानी के आलम में उस शहर से निकल जाने का इरादा करके चल दिए। यहां तक कि बहिरा रूम के किनारे पहुंच गए। वहां एक कश्ती देखी जिसमें लोग सवार थे। आप अलैहिस्सलाम को उन लोगों ने पहचान लिया और किराए के बगैर सवार कर लिया। कश्ती रवाना होकर जब वस्त में पहुंची तो दफातन ठहर गई, आगे बढ़ती है और न पीछे। कश्ती वालों ने मनादी की कि हमारी इस कश्ती में कोई जालिम, गुनाहगार या भागा हुआ गुलाम सवार हो जाता है तो ये कश्ती खुद ब खुद रुक जाती है। ऐसे आदमी को चाहिए कि खुद को जाहिर कर दे ताकि उसकी वजह से सब पर मुसीबत न आए। इस पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बोल उठे कि वो भागा हुआ गुलाम, गुनाहगार मैं ही हूं, क्योंकि अपने शहर से निकलकर कश्ती में सवार होना एक तिबई खौफ की वजह से था, बेइज़्ने इलाही ना था। और अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर यूं चले आने को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की पैगंबराना शान ने एक गुनाह करार दिया कि पैगंबर की कोई नकलो हरकत बिला इज़्ने इलाही नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे दरिया में डाल दो तो तुम सब इस अजाब से बच जाओगे। मगर कश्ती वाले इस पर तैयार ना हुए, बल्कि उन्होंने कुरानदाजी की ताकि जिसका नाम निकले उसे दरिया में डाला जाए। लेकिन कुरानदाजी में भी आप अलैहिस्सलाम ही का नाम निकल आया। लोगों को इस पर ताज्जुब हुआ तो कई मर्तबा कुरानदाजी की गई और हर मर्तबा आप अलैहिस्सलाम ही का नाम आता रहा, जिसका जिक्र कुरान करीम की सूरह साफात की आयत नंबर 141 में इस कुरानदाजी और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलने का जिक्र मौजूद है। एक तरफ कुरानदाजी में नाम निकलने पर आप अलैहिस्सलाम को दरिया में डाले जाने का सामान हो रहा था, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी मछली अल्लाह ताला के हुक्म पर कश्ती के करीब मुंह खोले मौजूद थी कि आप अलैहिस्सलाम को अपने पेट में जगा दे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जैसे ही पानी में गए, मछली ने फौरन उन्हें अपने पेट में ले लिया। इस बारे में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उस मछली के पेट में 40 रोज रहे। ये उन्हें जमीन की तह तक ले जाती और दूर दराज की मुसाफतों में फिराती रही। बाज अफराद ने 7, बाज ने 5 दिन और कई एक ने मछली के पेट में रहने की मुद्दत चंद घंटे लिखी है। अलबत्ता दोस्तों, हकीकत हाल तो अल्लाह ताला ही को मालूम है। इस हालत में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई और मछली ने आप अलैहिस्सलाम को बिल्कुल सही सालिम हालत में किनारे पर डाल दिया। मछली के पेट की गर्मी से उनके बदन पर कोई बाल न रहा था। अल्लाह ताला ने उनके करीब एक दरख्त उगा दिया जिसके पत्तों का साया आप अलैहिस्सलाम के लिए राहत का सबब बन गया। नीज एक जंगली बकरी अल्लाह ताला के हुक्म से सुबह शाम आप अलैहिस्सलाम के पास आ खड़ी होती और आप अलैहिस्सलाम उसका दूध पी लेते। दोस्तों, मारूफुल कुरान में मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि इस किस्से के जितने अज्जा कुरान पाक में मज़कूर हैं या अहादीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, वो तो यकीनी है। बाकी अज्जा महज तारीखी रिवायात पर मुश्तमिल है जिन पर किसी शरई मसले का मदार नहीं रखा जा सकता। और हमने क़ससुल अंबिया के सिलसिले की जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस की रिवायात पर मुश्तमिल है। इनमें इधर उधर की कहानियां हमने शामिल नहीं की। दोस्तों, रिवायात में समंदरी जानवरों की तस्बीह के हवाले से हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में कैद करने का इरादा फरमाया तो मछली को हुक्म दिया, इनको ले लो, लेकिन इनके गोश्त पर तेरा तसर्रुफ नहीं, क्योंकि ये तेरी ग़िज़ा नहीं है। जब मछली आप अलैहिस्सलाम को लेकर समंदर की इंतहाई निचली सतह में पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम ने कुछ आहटें सुनी। इस पर अल्लाह ताला ने वही फरमाई, ये समंदरी जानवरों की तस्बीह है। इस मौके पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी तस्बीह की। जब फरिश्तों ने आप अलैहिस्सलाम की तस्बीह सुनी तो बारगाहे खुदावंदी में अर्ज करने लगे, ऐ हमारे परवरदिगार, हम एक नहीफ और कमजोर सी आवाज किसी अजनबी जमीन से सुन रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये मेरा बंदा यूनुस है। फरिश्तों ने अर्ज किया, वो तो नेक बंदे हैं और उनकी तरफ से हर शबो रोज आपके पास नेक अमल पहुंचता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, ये मेरी बहुत अच्छी तस्बीह करते हैं। फिर फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुजूर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की सिफारिश की तो अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया और उसने आप अलैहिस्सलाम को समंदर के किनारे डाल दिया।
جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا اور ان پر ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا بدن مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے انتہائی لاغر اور کمزور ہو چکا تھا، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ صافات کی آیت نمبر 143 اور 144 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے یعنی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ دوستو، تفسیر ابن جریر میں حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کو اس نام سے پکارا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے اور جو مانگا جائے اللہ عطا فرماتے ہیں، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے استفسار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص ہے اور مومنین کے لیے عام۔ جب بھی وہ اس کے ساتھ دعا کریں، کیا تم نے اللہ کے فرمان کو نہیں سنا؟ پھر یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو تاریکیوں میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو غم سے نجات دی، اور ہم مومنین کو اس طرح نجات دیتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ دعا کی، اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے اس قصے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلی اقوام میں قوم یونس کی مثال سب سے عجیب اور منفرد ہے کہ جس نے عذاب کے وقوع ہونے سے پہلے ہی صدق دل کے ساتھ عاجزی و آہذاری کرتے ہوئے توبہ و استغفار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے اپنا عذاب ہٹا دیا، جبکہ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط وغیرہ عذاب سے ڈرانے اور بار بار تنبیہ کے باوجود شرک و کفر پر ڈھٹائی سے جمی رہیں اور عذاب کی بات کو مذاق سمجھتی رہیں، چنانچہ عذاب الہی کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گئی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 98 میں فرمایا، پس کوئی بستی ایسی کیوں نہیں ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیوی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک ان کو دنیاوی فوائد سے بہرہ مند رکھا۔ دوستو، اس تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ دنیا کا عذاب سامنے آ جانے پر بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، بلکہ توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ البتہ آخرت کا عذاب سامنے آ جانے کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، اور عذاب آخرت کا سامنے آنا قیامت کے دن ہوگا یا موت کے وقت۔ اور اسی حوالے سے جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتے رہتے ہیں جب تک وہ غرغرہ کی حالت میں نہ پہنچ جائے۔ غرغرہ کی حالت سے مراد موت کا وہ وقت ہے کہ جب نزع کے وقت فرشتے سامنے آ جاتے ہیں، اس وقت دنیا کی زندگی ختم ہو کر آخرت کے احکام شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے اس وقت کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ البتہ دوستو، اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کو عذاب الہی سے محفوظ رکھا۔ بہرحال یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے صحت و تندرستی دے کر اب دوبارہ نینوا جانے کا حکم دیا کہ قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائی جائے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نینوا واپس تشریف لے گئے، اور قوم کے لوگوں نے جب انہیں دیکھا تو خوشی کا اظہار کیا۔ روایات کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کی باقی زندگی نینوا ہی میں گزری، اور وہیں ان کا انتقال ہوا، اور وہیں ان کی قبر تھی جو نینوا کی تباہی کے بعد نامعلوم ہو گئی۔ دوستو، اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں جن انبیاء کرام علیہ السلام کے سبق آموز واقعات کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے ایک حضرت ذکری علیہ السلام بھی ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 86 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ذکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت ذکری علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ اگرچہ قرآن کریم اور سیرت و تواریخ کی کتب میں آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل موجود نہیں،
ताहम कुरान करीम की 4 सूरतों सूरह आल इमरान की आयत नंबर 37 ता 41, सूरह इनाम की आयत नंबर 85, सूरह मरियम की आयत नंबर 2 से 11 और सूरह अनबिया की आयत नंबर 99 से 90 तक कुछ अहादीस मुबारका में आप अलैहिस्सलाम का तज़किरा मिलता है, जिनसे आप अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ आगाही हासिल होती है। नीज बाइबल में एक बाब सहीफा जिक्रिया के नाम से है, लेकिन वो जिक्रिया नहीं है जिनका जिक्र कुरान करीम में है। तौरात में जिक्रिया की विलादत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से 500 साल कबल बयान की गई है, जबकि कुरान मजीद में जिन जिक्रिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के मुरब्बी और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के वालिदे माजिद हैं। रिवायात के मुताबिक हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम की अहलिया और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा आपस में बहनें थीं। यूं हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू थे। आप अलैहिस्सलाम नबी होने के अलावा बैतुल मुक़द्दस के इमाम, खादिम और एक रूहानी शख्सियत थे। लूका की अंजील में इस मनसब को काहिन कहा गया है। दरअसल बनी इसराइल में काहिन एक मजहबी और रूहानी ओहदा था, जिसके जिम्मे हैकल सुलेमानी और बैतुल मुक़द्दस की मजहबी रसूमात को अंजाम देना था। आप अलैहिस्सलाम के वालिद के नाम के बारे में मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ अक़वाल तहरीर किए हैं। हाफिज अबुल कासिम इब्न असाकिर रहमहुल्लाह अपनी मशहूर किताब हाफिल में फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम का इसमें गरामी बरखिया था। दोस्तों, जहां तक बात है आप अलैहिस्सलाम के कस्बे मुआश की, तो हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम भी दीगर अनबिया कराम अलैहिस्सलाम की तरह अपने हाथ से काम करते थे, जिसकी तस्दीक इस हदीस मुबारका से होती है। जैसा कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम बढ़ाई थे। याद रहे कि दुनिया में जितने भी अनबिया कराम अलैहिस्सलाम मबूस फरमाए गए, उन्होंने मुआश के लिए किसी न किसी पेशे को जरूर अपनाया। वो अपनी रोजी अपने हाथ की मेहनत से पैदा करते और अपने मुआश का बोझ किसी दूसरे पर न डालते। किसी से दीने हक के काम की उजरत तलब नहीं करते थे, बल्कि ये ऐलान फरमाते, और मैं तुम में से इस तबलीग पर कोई उजरत नहीं मांगता, मेरी उजरत तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही पर है। मुफस्सिरीन तहरीर फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में भेजे गए तो उनके पास जन्नत के पौधों के बीज थे। उन्होंने काश्तकारी की और सबसे पहले आटा पीसकर रोटी बनाई। नीज सतरपोशी के लिए जानवरों की खालों का लिबास तैयार किया। ये सब काम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें सिखाए। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने तामीरात का काम किया, शहरों और किलों की बुनियाद रखी। बाबुल और सूस आप अलैहिस्सलाम ही ने आबाद किए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम लकड़ी का काम करते थे, आप अलैहिस्सलाम ने कश्तियां बनाई। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कपड़ा बुनना, नाप तोल और असलहा बनाने का तरीका ईजाद किया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम तजारत किया करते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी के अलावा तामीराती काम भी किया करते थे। उन्होंने खाना काबा तामीर किया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तीर कमान भी बनाया करते थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ऊंट, भेड़, बकरियां पालते और उनके दूध से मुआश तलाश करते। हजरत लूत अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी करते थे। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके फर्जंद बकरियां चराया करते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी के साथ बकरियां भी चराया करते और आप अलैहिस्सलाम के निकाह के महर में भी बकरियां चराना था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने लोहा नरम फरमा दिया था। आप लोहे से ज़रा और दीगर औजार बनाया करते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अजीम शान सल्तनत के मालिक थे। आप अलैहिस्सलाम का ज्यादातर वक्त सफर में गुजरता, लेकिन जब भी वक्त मिलता अपने हाथ से पंखे और जंबीलें बनाते। इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन हजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में बकरियां चराई। नबूवत मिलने से पहले हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए मज़ारबत की बुनियाद पर तजारत की और हजरत अब्दुल्ला बिन साइब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ शराकत दारी में भी कारोबार फरमाया। हजरत अब्दुल्ला बिन साइब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं ज़माना जाहिलियत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरीके तजारत था। जब मदीना मुनव्वरा हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे पहचानते हो? मैंने अर्ज किया, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो मेरे बहुत अच्छे शरीके तजारत थे, किसी बात को टालते और न किसी बात पर झगड़ा करते। दोस्तों, बीच में तज़किरा ज़िम्नन चल पड़ा कि किस नबी ने अपनी जिंदगी में क्या काम किया। अलबत्ता बात हो रही थी
حضرت ذکریا علیہ السلام کی۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں ایک اہم واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ہے۔ کہتے ہیں بیت المقدس کے امام اور مذہبی پیشوا عمران بن ناشی اور ان کی اہلیہ حسنہ بنت فاقود نہایت نیک اور پارسا انسان تھے۔ دونوں اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق بسر کرتے تھے، تاہم طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود اولاد سے محروم تھے، جس کے لیے دونوں اللہ کے حضور دستے دعا بلند رکھتے۔ دعا قبول ہوئی اور انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیا گیا۔ دوستو، یاد رہے کہ انبیاء سابقین علیہ السلام کی شریعت میں عبادت کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اپنی اولاد میں سے کسی ایک بچے کو دینی کاموں کے لیے وقف کر دیا جاتا اور پھر اس بچے سے دنیا کا کوئی کام نہ لیتے۔ حضرت عمران کی بیوی نے بھی منت مان لی اور کہا، اے میرے رب، میرے شکم میں جو بچہ ہے اسے میں نے تیری عبادت گاہ کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی نظر مانی ہے، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ لیکن جب ان کے یہاں بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگیں، اے میرے پروردگار، مجھے تو لڑکی ہوئی ہے۔ ان کی اس گفتگو میں حسرت کا اظہار تھا اور عذر بھی۔ حسرت اس طرح کی، میری امید کے برعکس لڑکی ہوئی، اور عذر یوں کہ نظر سے مقصود تو تیری رضا کے لیے ایک خدمت گار وقف کرنا تھا، اور یہ کام مرد ہی زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا تھا۔ اب جو کچھ بھی ہے تو اسے جانتا ہی ہے۔ شوہر حضرت عمران کا انتقال بچی کی ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ آپ نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا اور فرمایا، اے اللہ، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حدیث میں ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے جس سے وہ چیختا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے چھونے سے محفوظ رکھا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ والدہ اپنی نظر پوری کرنے کی نیت سے نومولود مریم علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس پہنچی۔ وہاں مسجد کے مجاور خادم اور کاہن موجود تھے، جن میں حضرت ذکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا، اس بچی کے متعلق نظر مان چکی ہوں، اب یہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے آپ لوگوں کے پاس رہے گی۔ چونکہ وہ حضرت عمران کی بیٹی تھیں جو مسجد کے امام اور ایک روحانی بزرگ تھے، لہذا سب کی خواہش تھی کہ بچی اسے مل جائے۔ حضرت ذکریا علیہ السلام کا استدلال تھا کہ بچی کی ماں اور ان کی اہلیہ سگی بہنیں ہیں، نیز خالہ بمنزلہ ماں کے ہوتی ہے، اس لیے بچی کی پرورش پر ان کا حق زیادہ ہے۔ تاہم دیگر افراد اس پر راضی نہ ہوئے تو قرآن دازی کا فیصلہ کیا گیا، جس پر تینوں بار قرآن حضرت ذکریا علیہ السلام ہی کے نام کا نکلا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کا سرپرست بنا دیا۔ آپ علیہ السلام نے بڑے ذوق و شوق سے ان کی پرورش شروع کر دی۔ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنے گھر ہی میں رکھا، لیکن جب وہ ذرا سمجھدار ہو گئیں تو انہیں مسجد سے متصل ایک حجرے میں منتقل کر دیا، جبکہ رات کو وہ اپنی خالہ ہی کے پاس آ کر سو جایا کرتی تھی۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ان نشانات قدرت کی جن کا مشاہدہ حضرت ذکریا علیہ السلام نے فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ذکریا علیہ السلام جب حجرے سے باہر جاتے تو حفاظت کے نقطہ نظر سے باہر سے کفن لگا دیا کرتے، لیکن جب واپس آتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے نہایت اعلیٰ قسم کے پھل اور میوہ جات موجود ہوتے۔ آپ علیہ السلام نے ایک دن تعجب اور حیرت سے پوچھا، اے مریم، یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آتی ہے؟ وہ بولی، اللہ کے یہاں سے آتی ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ ایک لحاظ سے حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت ذکریا علیہ السلام کی اولاد کے لیے دعا کی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ذکریا علیہ السلام کی اہلیہ عائشہ بانجھ تھیں، جس کی وجہ سے وہ بے اولاد تھے۔ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے اور ظاہراً اولاد ہونے کے امکانات بھی ختم ہو چکے تھے، لیکن جب حضرت ذکریا علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی نہایت اعلیٰ قسم کے پھل دیکھے تو آپ علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ جب میرا رب بے موقع پھل عطا کر سکتا ہے تو اس کے لیے اولاد دینا کیا مشکل ہے۔ اولاد کی خواہش نے دعا کا روپ دھار کر رب کے حضور مانگنے کی ہمت پیدا کر دی، اور پھر بے اختیار ان کے لبوں پر یہ دعا آ گئی، اے میرے پروردگار، مجھے اپنی جانب سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کی اس دعا کو قبول فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ فوری جاؤ اور میرے نیک بندے ذکریا کو بیٹے کی بشارت دے دو۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
अभी वो इबादत गाह में खड़े नमाज पढ़ रहे थे कि फरिश्तों ने आवाज दी कि जिक्रिया, अल्लाह तुम्हें याहिया की बशारत देता है, जो अल्लाह के फैज यानी ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक करेंगे और सरदार होंगे और औरतों से रगबत ना रखने वाले होंगे और अल्लाह के पैगंबर यानी नेकोकारों में होंगे। दोस्तों, कुरान मजीद की 16वें पारे की सूरह मरियम में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इस वाक़े को यूं बयान फरमाया है, यह है तेरे परवरदिगार की उस मेहरबानी का जिक्र जो उसने अपने बंदे जिक्रिया पर किया, जब उन्होंने अपने परवरदिगार से चुपके चुपके दुआ की थी, ऐ मेरे रब, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और सर में बुढ़ापा चमकने लगा है, लेकिन मैं कभी भी तुझसे दुआ करके महरूम नहीं रहा। मुझे अपने मरने के बाद अपने क़राबतदारों का डर है, मेरी बीवी भी बांझ है, बस तो मुझे अपने पास से वारिस अता फरमा जो मेरा भी वारिस हो और याकूब अलैहिस्सलाम के खानदान का भी जानशीन, और मेरे रब तू उसे कबूल बंदा बना ले। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए जिक्रिया, हम तुम्हें एक बच्चे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम याहिया है। हमने उससे पहले उसका हम नाम भी किसी को नहीं किया। जिक्रिया अलैहिस्सलाम कहने लगे, मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मेरी बीवी बांझ और मैं खुद बुढ़ापे के इंतहाई ज़ोफ को पहुंच चुका हूं। इरशाद हुआ, तुम्हारे लिए अलामत यह है कि बावजूद भला चंगा होने के तुम 3 रातों तक किसी शख्स से बोल न सकोगे। अब जिक्रिया अलैहिस्सलाम अपने हुजरे से निकलकर अपनी कौम के पास आए तो उनसे इशारे से कहा कि तुम सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहो। हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम ने दुआ से पहले अपने ज़ोफ व कमजोरी का जिक्र किया। इमाम कर्तबी रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुआ मांगते वक्त अपने ज़ोफ व बदहाली और हाजतमंदी का जिक्र करना कबूलियत दुआ के लिए अकरब है, और इसीलिए उलमाए कराम ने फरमाया कि दुआ में पहले अल्लाह ताला की नेमतों और अपनी हाजतमंदी का जिक्र करना चाहिए। और इसी बुनियाद पर मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुआ में अपनी हाजतमंदी का इजहार मुस्तहब है। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में सबसे ज्यादा नबी मौबूस फरमाए, उन पर अपनी रहमतें और नेमतें भी नाजिल फरमाता रहा, लेकिन ये कि वो नाशुक्री कौम है कि जो बार बार नाफरमानियां करती रही और शिर्क में मुब्तला होकर अनबिया कराम अलैहिस्सलाम पर जुल्म सितम ढाती रही, यहां तक कि उन्हें शहीद करने से भी दरेग नहीं किया। जैसा कि कुरान पाक की सूरह आल इमरान की आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग अल्लाह ताला की आयतों से कुफ्र करते हैं और नाहक नबियों को कत्ल कर डालते हैं, और जो लोग अदल व इंसाफ की बात कहें तो उन्हें भी कत्ल कर डालते हैं, तो ए नबी, उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर दे दीजिए। दोस्तों, जहां तक बात है हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम की शहादत की, तो बनी इसराइल ने पहले आप अलैहिस्सलाम के साहबजादे हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को शहीद किया। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम दमिश्क में थे। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद बनी इसराइल ने आप अलैहिस्सलाम को शहीद करने का प्रोग्राम बनाया। हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम की वफात के हवाले से मुख्तलिफ रिवायात हैं। बाज के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम अपनी तबई उम्र पूरी करके इंतकाल फरमाया, जबकि बहुत से मुफस्सिरीन का कहना है कि उन्हें बनी इसराइल ने शहीद किया। वहाब बिन मंबा रहमहुल्लाह अलैह के मुताबिक हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम अपनी कौम से भागे और एक दरख्त के खला में दाखिल हो गए, तो कौम ने वहां पहुंचकर दरख्त पर आरा चला दिया। कहा जाता है कि उस वक्त हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल से जायद थी। मौरखीन के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम का मजार शाम के शहर हलब की मस्जिद जामे जिक्रिया में है। दोस्तों, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम अपने वालिद हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह के बरगुजीदा नबी थे। आप अलैहिस्सलाम का नाम खुद अल्लाह जल्ला शानुहु ने तजवीज फरमाया, जैसा कि सूरह मरियम की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए जिक्रिया, हम तुम्हें एक ऐसे फर्जंद की बशारत देते हैं जिसका नाम याहिया होगा। इससे पहले हमने इस नाम का कोई शख्स पैदा नहीं किया। गोया दुनिया में सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम का नाम याहिया रखा गया, और आप अलैहिस्सलाम अपनी सिफात में भी सबसे मुनफरिद थे। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम अपने वालिद हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआओं का समरा थे, जिन्हें अल्लाह ने बुढ़ापे में औलाद अता फरमाई। रिवायात के मुताबिक हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की वालिदा ईशा और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा हन्ना आपस में हकीकी बहनें थीं। यूं हजरत याहिया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपस में खालाजाद हुए। आमतौर पर वालिदा की खाला को भी खाला ही कह दिया जाता है। कहा जाता है कि हजरत याहिया अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से उम्र में 6 माह बड़े थे। रिवायात में आता है कि हजरत याहिया अलैहिस्सलाम कसरत से गिरिया उजारी किया करते,
यहां तक कि आंसुओं की वजह से रुखसारों पर निशान पड़ गए थे। इब्न असाकर ने रिवायत किया है कि एक रोज वालदैन उनकी तलाश में निकले तो देखा कि वो जंगल में एक कब्र खोदे उस पर खड़े जारों के तार रो रहे हैं। वालदैन ने फरमाया, बेटे, हम 3 दिन से तुम्हारी तलाश में हैं। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने आखिरत के हवाले से ऐसी पुरअसर गुफ्तगू की कि वालदैन रो पड़े। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम बेहद हलीम, रकीकुल कल्ब, पाकबाज, आबिद मुत्तकी, इस्तगनाओ कनात से सरशार, शर्मो हया के पैकर और शीरीं कलाम थे। निहायत सादा जिंदगी बसर करते। ग़िज़ा बक़दरे ज़रूरत और लिबास इतना होता जो सतरपोशी के लिए काफ़ी होता। उन्हें जंगलों बियाबानों से मोहब्बत थी। जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा वहीं गुजारा जहां दरख्तों के पत्ते और शहद बतौर ग़िज़ा तनावुल फरमाते। प्यास लगती तो नहर से पानी पी लेते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ऊन का लिबास पहनते, जबकि हजरत याह्या अलैहिस्सलाम जानवरों के बालों का लिबास ज़ेबे तन फरमाते थे। दोस्तों कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम के पास दिरहम दीनार थे, ना कोई गुलाम या बांदी, कोई मखसूस ठिकाना भी ना था। जहां रात हो जाती वहीं बसेरा कर लेते। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जंगल ही में वही लेकर हाजिर हुए। हजरत रबी बिन अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत सबसे पहले तस्लीम करने वाले हजरत याह्या अलैहिस्सलाम थे। और हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औलाद आदम में कोई ऐसा नहीं जिससे गुनाह सरजद ना हुआ हो सिवाय हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के। दोस्तों आपको बताते चलें कि कुरान पाक में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र उन 4 सूरतों में आया है जिनमें हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है, यानी सूरह आल इमरान, सूरह इनाम, सूरह मरियम और सूरह अनबिया। अब बात करते हैं आप अलैहिस्सलाम के औसाफ जमीला की। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हजरत याह्या अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई, ऐ याह्या, हमारी किताब मजबूती से थाम, और हमने उनको लड़कपन ही में दानाई अता फरमाई थी और अपने पास से शफकत और पाकीज़गी भी, और वो परहेजगार थे और माँ बाप के साथ नेक सलूक करने वाले थे और सरकश और नाफरमान नहीं थे। और उन पर सलाम हो जिस दिन वो पैदा हुए और जिस दिन वफात पाएंगे और जिस दिन जिंदा करके उठाए जाएंगे। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम अभी कम उम्र ही थे कि परवरदिगार आलम ने फरिश्तों के जरिए तौरात हिफ्ज करवा दी और उन्हें हुक्म दिया कि आसमानी किताब का जो इल्म तुम्हें अता किया गया है उस पर खुद भी अमल करें और अपनी कौम को भी उसका दर्स दें। इसके साथ ही उन्हें बचपन ही में इल्म दानाई, अक्ल हिकमत, तहारत व पाकीज़गी और परहेजगारी अता फरमाई गई और उनमें वो तमाम खूबियां यकजा कर दी गईं जो एक नेक, पारसा और साहिब ईमान बंदे की शान है। गुनाहों, नाफरमानियों और सरकशी से कोसों दूर, वालदैन के फरमाबरदार और मखलूक खुदा के खिदमत गुजार। दोस्तों याद रहे कि हजरत याह्या अलैहिस्सलाम अपने वालदैन ही नहीं बनी इसराइल के लिए भी अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा इनाम थे। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से तीनों हालतों में सलामती मिली, यानी पैदाइश के दिन, मौत के दिन और यौम हशर। दरअसल ये तीनों मौके किसी भी इंसान के लिए सख्त वहशतनाक हैं। इंसान माँ के पेट से निकलते ही एक नई दुनिया देखता है जो उसकी मुख्तसर सी तारीख दुनिया से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होती है। मौत के दिन उसका वास्ता एक और दुनिया से पड़ता है। फिर जब उसे कब्र से जिंदा करके उठाया जाएगा तो वो अपने आप को मैदान हशर की हौलनाकियों में घिरा पाएगा। बस इस आयत में इन तीनों मकामात और मौके पर अल्लाह ताला की तरफ से हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के लिए सलामती का ऐलान किया गया। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 5 खास सिफात अता फरमाई थीं और सूरह आल इमरान की आयत 39 में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की इन 5 खास सिफात का जिक्र फरमाया है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, अभी वो इबादत गाह में खड़े नमाज ही पढ़ रहे थे कि फरिश्तों ने आवाज दी कि ज़िक्रिया, अल्लाह आपको याह्या अलैहिस्सलाम की बशारत देते हैं जिनके अहवाल ये होंगे कि वो कलमतुल्लाह यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत की तस्दीक करने वाले होंगे और दूसरे मुक्तदाए दीन होंगे और तीसरे अपने नफ्स को लज्जत से बहुत रोकने वाले होंगे और चौथे नबी भी होंगे और 5वें आला दर्जे के शाइस्ता होंगे। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कलमतुल्लाह इसीलिए कहते हैं कि वो महज अल्लाह ताला के हुक्म से खिलाफ आदत बिला वास्ता बाप पैदा किए गए।
اسی طرح اپنے نفس کو لذات سے روکنے میں سب مباح خواہشات سے بچنا شامل ہے، جیسے اچھا کھانا، اچھا پہننا، نکاح کرنا وغیرہ۔ ضبط نفس کی صفت بیان کرنے سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ افضل طریقہ یہی ہے، حالانکہ احادیث سے نکاح کی فضیلت ثابت ہے۔ اس معاملے کی تحقیق یہ ہے کہ جس شخص کی حالت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سی ہو کہ ان پر آخرت کا خیال اس قدر غالب ہو کہ بیوی کی ضرورت محسوس کریں اور نہ ہی بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کی فرصت ہو، تو ایسے شخص کے لیے یہی افضل ہے کہ شادی نہ کرے۔ اسی وجہ سے جن احادیث میں نکاح کی فضیلت آئی ہے، ان میں یہ بھی قید ہے جو آدمی نکاح کرنے کی قدرت رکھتا ہو اور زوجیت کے حقوق ادا کر سکتا ہو تو اس کے لیے نکاح کرنا افضل ہے، ورنہ نہیں۔ دوستو، آپ علیہ السلام کی زندگی میں 5 باتوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے، جیسا کہ حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم فرمایا کہ ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کا حکم دو۔ لہذا انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جسے اس کے مالک نے اپنی رقم سے خریدا، مگر غلام جو کچھ کماتا ہے وہ مالک کی بجائے کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کون ایسے غلام کو پسند کرے گا؟ لہذا یاد رکھو، جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے تو تم پر لازم ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں، جب تم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنا رخ تمہاری طرف کر لیتا ہے، لہذا جب نماز پڑھو تو کسی اور طرف دھیان مت لگاؤ۔ نمبر 3، میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال یوں دی ہے جیسے کسی جماعت میں ایک شخص کے پاس مشک کی پوٹلی ہو تو مشک خود بخود پوری جگہ کو مہکا دے گی۔ بے شک روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ معطر، مقبول اور پسندیدہ ہے۔ نمبر 4، میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں، اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص کو دشمنوں نے اچانک آ دبوچا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر قتل کرنے کے لیے چلے جا رہے ہوں۔ اس نا امیدی کی حالت میں وہ کہے گا، کیا میرا پورا مال لے کر میری جان بخشی ہو سکتی ہے؟ اور اسبات میں جواب پا کر جان کے بدلے ساری دولت قربان کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ 5واں حکم یہ ہے کہ دن رات کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی سے اس کے تعاقب میں ہو، وہ شخص بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ گزین ہو جائے۔ دوستو، جہاں تک بات ہے آپ علیہ السلام کی وفات کی، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں مفسرین نے مختلف واقعات تحریر کیے ہیں جو یہود و نصارہ کی کتب سے لیے گئے ہیں۔ تاہم مفسرین کی اکثریت نے جس واقعے کو بیان کیا ہے وہ لوقا کی انجیل سمیت یہود و نصارہ کی کئی کتب میں درج ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیہ کا بادشاہ ہیرود ایک عیاش شخص تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں فسق و فجور پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے حقیقی بھائی فلیپ کی بیوی ہیرودیاس کو بغیر نکاح اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور دعوت حق کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، انہوں نے بادشاہ کی ان فحش حرکات کے خلاف آواز بلند کی، جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ تاہم بادشاہ ان سے ڈرتا بھی تھا، وہ جانتا تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی اور نیک و پارسا انسان ہیں، نیز عوام میں بڑی عزت ہے، لیکن بادشاہ کی داشتہ ہیرودیاس حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے اور اپنے جیسی دوسری بدکار عورتوں کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتی تھی، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کی جان کے درپے ہو گئی۔ اسی اثنا میں بادشاہ کی سالگرہ کے سلسلے میں محل میں رقص و موسیقی کی محفل جمی، جس میں ہیرودیاس کی جوان سال خوبصورت بیٹی نے رقص کے ہیجان خیز تیر چلا کر بادشاہ کو اپنے جال میں پھانس لیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے کہا، مانگ کیا مانگتی ہے؟ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا، وہ تو پہلے ہی ایسے موقع کی طاق میں تھی، لہذا بیٹی سے کہا، یحییٰ کا سر مانگ لے۔ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ادب سے جھک کر عرض کیا، اے بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دیجیے۔ بادشاہ یہ سن کر غمگین تو ہوا،
मगर महबूबा की बेटी की फरमाइश कैसे रद्द कर सकता था। चुनाचे उसने फौरन कैद खाने से हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का सर कटवा कर मंगवाया और एक थाल में सजाकर महबूबा की रकासा बेटी की नजर कर दिया। कहते हैं कि दमिश्क की जामे मस्जिद बनी उमैया के हाल में आप अलैहिस्सलाम का सर मुबारक दफन है। उमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलक ने यह मस्जिद तामीर करवाई थी। मौरखीन ने लिखा है कि दौरान तामीर यहां एक गार दरियाफ्त हुआ। इत्तला मिलने पर खलीफा खुद गार में दाखिल हुए तो देखा कि एक संदूक में इंसानी सर रखा हुआ है और संदूक पर तहरीर है, ये हजरत याहिया अलैहिस्सलाम बिन ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का सर है। उनका चेहरा और बाल अपनी असली हालत में थे, यूं लगता था जैसे अभी शहीद हुए हों। दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में मबूस होने वाले आखिरी नबी थे। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खातमुल अनबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी दी। जैसा कि कुरान मजीद की सूरह साफात की आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जब ईसा इब्ने मरियम ने कहा, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूं और एक पैगंबर की जो मेरे बाद आएंगे जिनका नाम अहमद होगा, बशारत सुनाता हूं। दोस्तों, याद रहे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 600 साल तक कोई नबी नहीं आया। फिर अल्लाह ताला ने हमारे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर मबूस फरमाया और उन पर आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद नाजिल फरमाई। याद रहे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल फरमाई गई थी। जैसा कि सूरह मायदा की आयत नंबर 46 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और हमने उन पैगंबरों के बाद ईसा इब्ने मरियम को अपने से पहली किताब यानी तौरात की तस्दीक करने वाला बनाकर भेजा, और हमने उनको इंजील अता की जिसमें हिदायत और नूर था। इब्ने जुरैर ने तहरीर किया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर जब इंजील नाजिल हुई तो आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 30 साल थी और नबूवत के 3 साल बाद यानी 33 बरस की उम्र में अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। दोस्तों, आपको बताते चलें कि कुरान करीम की 13 सूरतों में मुख्तलिफ नामों से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा मौजूद है। 26 मकामात पर ईसा अलैहिस्सलाम, 23 मकामात पर इब्ने मरियम, 11 जगहों पर मसीह और 1 मकाम पर आप अलैहिस्सलाम को अब्दुल्लाह कहा गया है। कुरान मजीद की 19 सूरह मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा के नाम पर है, जिसमें हजरत मरियम बिन्नत इमरान और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा तफसील के साथ मौजूद है। इसके अलावा कुरान मजीद की तीसरी सूरह आल इमरान हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद के नाम से मंसूब है, जिसमें हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाकया बयान किया गया है। कुरान मजीद की 5वीं सूरह मायदा में उस खाने का जिक्र है जिसकी फरमाइश हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने की थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में दुआ की, जिस पर आसमान से मायदा यानी खाने के ख्वान का नज़ूल हुआ। दोस्तों, कहा जाता है कि कुरान पाक में सबसे ज्यादा जिस नबी का तज़किरा है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही है, और इसी बारे में मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमहुल्लाह तहरीर फरमाते हैं कि कुरान करीम में अनबिया कराम अलैहिस्सलाम में से सबसे ज्यादा जिक्र हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का किया गया है। सूरह आल इमरान की 11वीं रकू में हक ताला ने अनबिया साबिकीन अलैहिस्सलाम का जिक्र एक ही आयत में अजमालन करने पर इक्तफा फरमाया। उसके बाद तकरीबन 3 रुकू और 22 आयात में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके खानदान का जिक्र किया गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नानी का जिक्र, उनकी नजर का बयान, वालिदा की पैदाइश, उनका नाम, तरबियत का तफसीली जिक्र, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बतन मादर में आना, फिर विलादत का मुफस्सल हाल, विलादत के बाद माँ ने क्या खाया पिया उसका जिक्र, अपने खानदान में बच्चे को लेकर आना, उनके तानो तशनी, नौमौलूद मसीह को बतौर मोजज़ा गोयाई अता होना, कौम को दावत देना, उनकी मुखालफत, हवारीन की इमदाद, यहूदियों का नरगा, जिंदा आसमान पर उठाया जाना वगैरह। फिर अहादीस मतवातरा में उनकी मजीद सिफात, शक्ल सूरत, हैयत, लिबास वगैरह की पूरी तफसीलात। ये ऐसे हालात हैं कि कुरान और हदीस में किसी नबी और रसूल के हालात इस तफसील से बयान नहीं किए गए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बेटे की बशारत की। याद रहे कि सूरह मरियम की आयात 16 से 35 के दरमियान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र फरमाया गया है।
जिसके मुताबिक हजरत मरियम बैतुल मुक़द्दस से मुत्तसिल हुजरे में क़याम पजीर थी। एक दिन वो मस्जिद के मशरकी कोने में इबादत या किसी और मकसद से तशरीफ ले गईं और पर्दा कर लिया। इमाम कर्तबी रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो हस्ब आदत यकसुई के साथ इबादत इलाही में मशगूल होने के लिए हुजरे के मशरकी जानिब किसी गोशे में तशरीफ ले गईं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम उस गोशे में तन्हा थीं कि अचानक हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में तशरीफ लाए। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने एक अजनबी शख्स को यूं अपने करीब देखा तो घबरा गईं और कहने लगी, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूं, अगर तू अल्लाह से डरता है तो यहां से चला जा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मुझसे डरो नहीं, मैं तो परवरदिगार का भेजा हुआ फरिश्ता हूं और तुम्हें एक पाकीज़ा बेटा देने की खुशखबरी लेकर आया हूं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम निहायत हैरान और परेशान हुई और ताज्जुब से फरमाया, भला मेरे यहां बच्चा कैसे हो सकता है? मुझे तो किसी इंसान ने हाथ तक नहीं लगाया और ना ही मैं बदकार हूं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ बात तो यही है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मेरे लिए बहुत आसान है और हम उसे अपनी कुदरत तख्लीक के लिए निशानी बनाना चाहते हैं। इससे कबल हमने तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को मर्द और औरत के बगैर और तुम्हारी माँ हवा को सिर्फ मर्द से पैदा किया और अब ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करके चौथी शक्ल में भी पैदा करने पर अपनी कुदरत का इजहार करना चाहते हैं, और वो है सिर्फ बगैर मर्द के पैदा करना। दोस्तों, दरअसल अल्लाह ताला तो कादिर मुतलक हैं, वो जब जहां और जिस तरह चाहें पैदा कर सकते हैं। वो बेजान चीज से जानदार को पैदा कर सकते हैं और जानदार से बेजान। दोस्तों, ये थी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बेटे की खुशखबरी। अब बात करते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की। कहते हैं कि बेटे की बशारत के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम पर फूंक मारी और वहां से चले गए। कुछ दिनों के बाद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बच्चे की पैदाइश के आसार महसूस होने लगे। जैसे जैसे पैदाइश के दिन करीब आते जा रहे थे, आप अलैहिस्सलाम की परेशानी में भी इजाफा होता चला जा रहा था। जब पैदाइश का वक्त करीब आया तो आप अलैहिस्सलाम लोगों के खौफ से बैतुल मुक़द्दस से तकरीबन 9 मील दूर जंगल की जानिब एक पहाड़ी कोहे सिरात की जानिब चली गई। यही वो जगह है जो बाद में बैतुल लहम कहलाई। जब दर्द ज़ेह शुरू हुआ तो आप अलैहिस्सलाम एक खजूर के दरख्त से टेक लगाकर बैठ गईं। ज़चगी की तकलीफ की शिद्दत और दुनिया वालों के खौफ ने आबदीदा कर दिया। कहने लगी, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की याद से भी भूली बिसरी हो जाती। उलमा फरमाते हैं कि उन्होंने मौत की आरजू इसलिए की कि वो अजीजो अकारब, खानदान, बरादरी और लोगों को किस तरह मुतमईन कर सकेंगे, जबकि कोई उनकी सदाकत की तस्दीक करने वाला भी नहीं। उनकी शोहरत एक नेक, पारसा और जाहिदा के तौर पर थी, लिहाजा उनके लिए ये तसव्वुर ही बड़ा रूह फरसा और तकलीफ दे था कि लोग उन्हें बदकार समझे। दोस्तों, कहते हैं कि अभी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अनजाने अंदेशों और वसवसों में घिरी हुई थी कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वादी के नीचे से आवाज दी, ऐ मरियम, परेशान ना हो, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे कदमों तले एक चश्मा जारी कर दिया है, और जरा इस खजूर के दरख्त को हिलाओ, देखो ये तुम्हारे सामने तरौ ताजा खजूरें गिरा देगा। अब तुम इत्मीनान के साथ ये ताजा खजूरें खा लो, चश्मे का पानी पियो और बच्चे को देखकर अपनी आंखें ठंडी करो, और अगर तुम्हें कोई इंसान नजर पड़ जाए तो इशारे से कह देना कि मैंने रोजा रखा हुआ है, मैं आज किसी शख्स से बात नहीं कर सकती। आपको बताते चलें कि उस वक्त की शरीयत में रोजे में खाने पीने के साथ बोलना भी मना था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के इस पैगाम से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को इत्मीनान और तसल्ली हो गई कि अब मेरा रब मुझे बदनामी और रुसवाई से बचा लेगा। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि विलादत के 40 रोज बाद जब तहारत हो चुकी तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपने घर वालों के पास वापस आईं। लोग नौमौलूद बच्चे को गोद में देखकर हैरान रह गए और बदगुमान होकर बोले, ऐ मरियम, ये तो तूने बड़े गुनाह का काम किया, ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था और न तेरी माँ बदकार थी। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के हिदायत के मुताबिक बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। रिवायत में है कि जब खानदान ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को मलामत करना शुरू किया तो उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दूध पी रहे थे। जब उन्होंने लोगों की मलामत भरी बातें सुनी तो दूध पीना छोड़ दिया और अपनी बाएं करवट पर सहारा लेकर उनकी जानिब मतवज्जे हुए और अंगिश्ते शहादत से इशारा करते हुए फरमाया,
अन्नी अब्दुल्ला, यानी मैं अल्लाह का बंदा हूं, और फिर अल्लाह की तरफ से नबूवत और किताब मिलने की खबर दी। उसके बाद फरमाया, अल्लाह ने मुझे नमाज और ज़कात का पाबंद बनाया, और जब तक मैं जिंदा हूं मुझे अपनी वालिदा का हक अदा करने वाला बनाया, और मुझको सरकश और बदबख्त नहीं बनाया, और अल्लाह की सलामती है मुझ पर, जब मैं पैदा हुआ, जब मैं मरूंगा, और जब दोबारा जिंदा करके उठाया जाऊंगा। कहते हैं कि लोगों ने जब नौमौलूद बच्चे के मुंह से ये अल्फाज सुने तो हैरत ज़दा रह गए, और उन्हें यकीन हो गया कि बीबी मरियम अलैहिस्सलाम पाक दामन है और ये बच्चा अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है। इस वाक़े के बाद खानदान और बनी इसराइल के समझदार लोग दोनों की बड़ी इज्जत करने लगे और उन्हें खैर व बरकत का बाइस समझने लगे। दोस्तों, यहाँ आपको मुख्तसरन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मकाम के बारे में बताते हैं। याद रहे कि जूदिया के पहाड़ों में वाक़े बैतुल्लाहम फलस्तीन का एक बहुत बड़ा गांव है, जो सतह समंदर से 800 मीटर की बुलंदी पर वाक़े है। बैतुल्लाहम के जनूब में चंद मील की मुसाफत पर कोहे सरात यानी कोहे साइर के दामन में वो तारीखी मकाम है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इस गार से मुत्तसिल कोने में एक पत्थर नस्ब है जिसमें एक गोल सुराख है। बताया जाता है कि इस जगह खजूर का वो दरख्त था जिसके मुताल्लिक कुरान मजीद में जिक्र है कि ए मरियम, इसे हिलाओ तो खजूरें गिरेंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं आप अलैहिस्सलाम के हुलिया मुबारक की। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस रात मुझे आसमानों पर ले जाया गया तो मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। वो मुतहर्रिक और जोश व जज्बात वाले थे। उनके बाल कुछ घुंघराले थे, गोया कबीले के लोगों में से हूं। मैंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। वो दरमियाने कद, सुर्ख व सफेद चेहरे वाले थे और यूं लग रहे थे गोया गुसल खाने से नहा कर निकले हों। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा और मैं उनकी औलाद में से सबसे ज्यादा उनसे मुशाबे हूं। मसनद अहमद में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया व आखिरत में ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम से सबसे ज्यादा करीब तर मैं हूं, क्योंकि हम दोनों के दरमियान कोई और नबी नहीं। जब वो उतरेंगे तुम उन्हें देखो तो पहचान लेना। दरमियाने कद के हामिल, माइल बसुर्खी और सुपैदी, भरे जिस्म वाले हैं, गोया सर से पानी टपक रहा है। अगरचे तरी नीचे तक नहीं पहुंचती, वो तमाम उम्मतों को खत्म कर देंगे, हत्ता कि उनके जमाने में सिर्फ इस्लाम रह जाएगा और जमीन पर ऐसी खुशहाली, बरकत और अमन होगा कि ऊंट और शेर, चीते और गायें, भेड़िए और बकरियां एक साथ चरेंगे। बच्चे बच्चियां सांपों के साथ खेलेंगे, एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब तक अल्लाह ताला ने चाहा यूं ही होता रहेगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वफात फरमाएंगे तो मुसलमान उन पर नमाज पढ़कर उन्हें दफनाएंगे। एक रिवायत में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक दुनिया में रहेंगे। आप अलैहिस्सलाम को रोज़ा अतहर में दफनाया जाएगा, जहां एक कब्र की जगह बाकी है। दोस्तों, ये था तज़किरा आप अलैहिस्सलाम के हुलिया मुबारक का। अब आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बाकी हालात व वाक़यात के बारे में आपको बताते हैं। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम गोद में बातचीत के बाद कलाम करने से रुक गए थे। फिर जब लड़कपन को छूने लगे तो अल्लाह ताला ने उनकी जुबान पर हिकमत और दानाई की बातें जारी कर दी। जब आप अलैहिस्सलाम 7 साल के हुए तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम को मुअल्लिम के पास दरसगाह में भेजना शुरू कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बचपन ही में अल्लाह की तरफ से इल्हाम करदा अजायबात का नजारा करते थे। ये बात यहूदियों में फैल गई तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम के खिलाफ मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। हालांकि आप अलैहिस्सलाम के खानदान के लोग आप अलैहिस्सलाम की और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की बहुत इज्जत करते थे। यहूद ने आप अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम की वालिदा के मुताल्लिक तरह तरह के एतराजात शुरू कर दिए। ये वो वक्त था कि जब हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पैगंबर थे, लेकिन यहूद अपनी साबका रिवायात और आदात खबीसा के बाइस हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की नाफरमानी और उनकी तकजीब करते थे। उन लोगों ने मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम होकर मुशरिकाना तौर तरीके इख्तियार कर लिए थे, यहां तक कि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक तौरात में भी बहुत ज्यादा रद्दोबदल कर लिया था। उनके अकायदो आमाल दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे थे। जब बैतुल मुकद्दस के हालात खराब होने लगे तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम को लेकर
अपने अजीजों के पास मिस्र चली गई। 13 साल बाद अल्लाह ताला के हुक्म से मिस्र से वापस हुई। फिर अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम को इंजील अता फरमाई और तौरात की तालीम दी। इसके अलावा मुर्दों को जिंदा करना, कोड़ियों को सही करना और दूसरे मोजज़ात से नवाजा। दोस्तों, अब बात करते हैं आप अलैहिस्सलाम के मोजज़ात की। याद रहे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को उसके ज़माने के हालात व मुशाहिदात के मुताबिक मोजज़े अता फरमाए ताकि उनकी सदाकत, अफजलियत और बरतरी नुमायां रहे। इसी तरह अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मोजज़े और फजीलतें अता फरमाई। सबसे पहला मोजज़ा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बगैर वालिद के पैदा होना था। आगोश मादर में कलाम करके अपनी वालिदा की पाकीज़गी और सदाकत की गवाही दी। मट्टी का परिंदा बनाते, उस पर फूंक मारते तो वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता। पैदाइशी नाबीना की आंखों पर हाथ रखते तो उसकी बीनाई ऐसे आ जाती जैसे कभी नाबीना ना हुआ हो। बर्स, जजाम और कोढ़ के मरीजों को अल्लाह के हुक्म से सेहतयाब करते, मुर्दों को जिंदा कर देते, लोग जो कुछ घरों से खाकर आते और जो अपने घरों में जखीरा करते उसकी तफसील बता देते। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह ने यहूद व नसारा की फांसी से आप अलैहिस्सलाम को बचाकर जिंदा सलामत आसमानों पर उठाया और आप अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे और लोगों से कलाम करेंगे, जिसका इशारा सूरह आल इमरान में है कि मां की गोद में भी और उधेड़ उम्र में भी कलाम करेंगे। जब आप अलैहिस्सलाम को दुनिया में दोबारा भेजा जाएगा तो आप अलैहिस्सलाम उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत के लिए बहसियत खलीफतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मती के तशरीफ लाएंगे। आप अलैहिस्सलाम मुसलमानों के साथ मिलकर जहाद करेंगे, दज्जाल और खिंजीर को कत्ल करेंगे, सलीब तोड़ डालेंगे, जमीन में अमन व बरकत होगी और दुनिया में सिर्फ इस्लाम रह जाएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई घर था और ना ही बीवी बच्चे। आप अलैहिस्सलाम शहर शहर, करिया करिया दीन हक की तबलीग फरमाते और लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाते। हस्बे जरूरत अपने मोजज़ात से उनकी मदद भी फरमाते। लेकिन इन सब के बावजूद यहूदियों की अक्सरियत आप अलैहिस्सलाम को अजियत देने और तकजीब करने से बाज न आती। दरअसल बनी इसराइल आप अलैहिस्सलाम की नबूवत के मुनकिर रहे। अलबत्ता उनमें से कुछ लोग ऐसे जरूर थे जो आप अलैहिस्सलाम के पैरोकार और हम दर्दो गमखार थे। वो आप अलैहिस्सलाम के साथ दीन के काम में मशगूल रहते, जैसा कि कुरान करीम में उन्हें हवारी के नाम से याद किया है। और इस बारे में इरशाद बारी ताला है, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनका कुफ्र महसूस कर लिया तो कहने लगे, अल्लाह ताला की राह में मेरी मदद करने वाला कौन कौन है? हवारियों ने जवाब दिया, हम अल्लाह ताला की राह में आप अलैहिस्सलाम के मददगार हैं। हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए और आप अलैहिस्सलाम गवाह रहिए कि हम ताबेदार हैं। याद रहे कि लफ्ज हवारी हूर से माखज है, जिसके लुग़वी मानी सुफैदी के हैं। इस्तिलाह में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुखलिस साथियों को ये लक़ब दिया गया है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सहाबी के लक़ब से नवाजा गया। मुफस्सिरीन ने बहुत ही करीबी हवारीन के तादाद 12 बतलाई है। हवारीन हवारी की जमा है और इसके मानी अंसार यानी मददगार के हैं। जैसे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर नबी का कोई हवारी यानी मददगार होता है। मेरे हवारी जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। दोस्तों, अब तज़किरा करते हैं आप अलैहिस्सलाम के हवारियों की फरमाइश का। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जब हवारियों ने कहा, ए ईसा इब्ने मरियम, क्या आपका परवरदिगार ऐसा कर सकता है कि हम पर आसमान से तआम का ख्वान नाजिल करे? उन्होंने कहा, अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह से डरो। वो बोले, हमारी ख्वाहिश है कि हम उसमें से खाएं और हमारे दिल तसल्ली पाएं और हम जान लें कि तुमने हमसे सच कहा और हम इस ख्वान के नजूल पर गवाह रहें। हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से ख्वान नाजिल फरमा कि हमारे लिए वो दिन ईद करार पाए, यानी हमारे अगलों और पिछलों सब के लिए, और वो तेरी तरफ से निशानी हो और हमें रिज्क दे, तू बेहतर रिज्क देने वाला है। जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं तुम पर जरूर ख्वान नाजिल फरमाऊंगा, लेकिन जो इसके बाद तुम में से कुफ्र करेगा उसे ऐसा अजाब दूंगा कि अहले आलम में किसी को ऐसा अजाब ना दूंगा। दोस्तों, इन आयात मुबारका में ख्वान या तआम के लिए मायदा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। मायदा ऐसे दस्तरखान को कहते हैं
जिस पर खाना चुना जाता है। हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमान से दस्तरखान उतरा जिसमें रोटी और गोश्त था। उनको हुक्म मिला कि खयानत न करें, जखीरा न करें और न कल के लिए उठा रखें, लेकिन उन्होंने खयानत की, जखीरा किया और उठाकर रखा तो वो बंदरों और सूरों में तब्दील हो गए। दोस्तों, अब बात करते हैं अकीदा तस्लीस की। इरशाद बारी ताला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि वो अल्लाह ताला एक ही है, वो माबूद बरहक बेनियाज है, किसी का बाप है और न किसी का बेटा और कोई उसका हमसर नहीं। लेकिन दोस्तों, अकीदा तौहीद के बरक्स नसारा ने अल्लाह ताला के साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और रूहुल कुदस यानी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही को शरीक करने पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को भी खुदा का दर्जा दे दिया। दरअसल नसारा भी यहूदियों की तरह मुख्तलिफ फिरकों में तकसीम हो गए थे। उस वक्त उनमें 3 फिरके थे। एक कस्तूरिया जो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहता था, दूसरा याकूबिया जो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा के साथ मुत्तहिद मानते थे, तीसरा मलकानिया जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को 3 खुदाओं में से एक मानते थे। नुज़ूल कुरान के वक्त भी नसारा फिरकों में तकसीम थे। उनका अकीदा 3 अलग अलग असूलों पर मबनी था। एक फिरका कहता था कि मसीह ऐन खुदा है और खुदा ही बशक्ल मसीह दुनिया में उतरा। दूसरे फिरका का कहना था कि मसीह इब्नुल्लाह है और तीसरा फिरका दावा करता था कि वहदत का राज 3 में पोशीदा है, यानी बाप, बेटा और मरियम अलैहिस्सलाम। इस जमात में भी 2 गिरोह थे। दूसरा गिरोह हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की जगह रूहुल कुदस को शामिल करता था। गर्ज वो हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को सालिस सरासा तस्लीम करते थे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, ए अहले किताब, अपने दीन में हद से ना बढ़ो और अल्लाह के बारे में हक के सिवा कुछ ना कहो। मसीह मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे, अल्लाह के रसूल और उसका कलमा थे, और 3 खुदा कहने से बाज आ जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह ही माबूद वाहिद है और इससे पाक है कि उसकी औलाद हो। जो कुछ जमीन आसमानों में है सब उसी का है और अल्लाह कारसाज है। सूरह मायदा में इरशाद है, यकीनन वो लोग काफिर हो गए जिन्होंने कहा मसीहा बिन मरियम ही अल्लाह है। इसी तरह इरशाद बारी ताला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अगर अल्लाह ताला मसीह, उनकी वालिदा और रूए जमीन के सब लोगों को हलाक करना चाहे तो कौन है जो अल्लाह ताला पर कुछ इख्तियार रखता हो। सूरह मरियम में अल्लाह ताला ऐसा कहने वालों को अजाब इलाही याद करवाते हुए फरमाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह बेटा रखता है, तुम बहुत बुरी बात जुबान पर लाते हो। करीब है कि इस अफ्तरा से आसमान फट जाएं और जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाएं कि वो अल्लाह की औलाद साबित करने बैठे हैं, और अल्लाह को शायान शान नहीं कि किसी को बेटा बनाए। दोस्तों, याद रहे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यहूद व नसारा के भटके हुए लोगों को तौहीद हक की तालीम देते रहे और उन्हें वाज़ो नसीहत फरमाते रहे, लेकिन यहूदियों ने न सिर्फ उनकी तकजीब की बल्कि मुसलसल अहानत भी करते रहे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत को 3 साल ही का अरसा गुजरा था कि बनी इसराइल ने आप अलैहिस्सलाम को अपने लिए बड़ी रुकावट समझते हुए कत्ल का मंसूबा बना लिया। जैसा कि सूरह आल इमरान की आयत नंबर 54 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और काफरों ने मकर किया और अल्लाह ताला ने भी खुफिया तदबीर की और अल्लाह ताला सब खुफिया तदबीर करने वालों से बेहतर है। याद रहे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में शाम का इलाका रूमियों के जेरे नगी था। यहां उनकी तरफ से जो हुक्मरान मुकर्रर था वो काफिर था। यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ उसके कान भर दिए, चुनाचे उसने यहूदियों के मुतालबे पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली देने का फैसला कर लिया। लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें बाहिफाजत आसमान पर उठा लिया और उनकी जगह उनके हमशक्ल को सूली दे दी गई। ताहम वो यही समझते रहे कि उन्होंने मसीह इब्ने मरियम को सूली पर लटकाया। दोस्तों, अल्लाह ताला का इरशाद है, और ये कहने के सबब कि हमने मरियम के बेटे ईसा मसीह अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह के पैगंबर थे कत्ल कर दिया है, हालांकि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया और ना ही सूली पर चढ़ाया, बल्कि उनके लिए उन यानी ईसा अलैहिस्सलाम का मुशाबे बना दिया गया था। जो लोग उनके बारे में इख्तलाफ करते हैं वो उनके हाल से शक में पड़े हुए हैं
اور पैरवी जन के सिवा उनको इसका मुतलक इल्म नहीं, और उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को यकीनन कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया, और अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। हजरत ज़ुहाक रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किस्सा यूं पेश आया कि जब यहूदियों ने हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के कत्ल का इरादा किया तो आप अलैहिस्सलाम के हवारी एक जगह जमा हो गए। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम भी उनके पास तशरीफ ले आए। इब्लीस ने यहूद के उस दस्ते को जो आप अलैहिस्सलाम के कत्ल के लिए तैयार खड़ा था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पता बताया। इस तरह 4000 अफराद ने मकान का मुहासरा कर लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारीन से फरमाया, तुम में से कोई शख्स इसके लिए आमादा है कि वो बाहर निकले और उसे कत्ल कर दिया जाए और फिर जन्नत में वो मेरे साथ हो। एक शख्स ने उस कुर्बानी के लिए अपने आप को पेश कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने उसे अपना कुर्ता इमामा अता फरमाया। फिर उस पर आप अलैहिस्सलाम की मुशाबहत डाल दी गई, और जब वो बाहर आया तो यहूद उसे पकड़ कर ले गए और सूली पर चढ़ा दिया, जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमानों पर उठा लिया। और दोस्तों, अब तज़किरा करते हैं क़यामत से पहले दोबारा आप अलैहिस्सलाम के नज़ूल का। याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती की हैसियत से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नज़ूल उम्मत मुसलमा की क़यादत व रहनुमाई, फितना व दज्जाल की सरकूबी, खिंजीर का कत्ल, सलीब का तोड़ना, याजूज माजूज का खात्मा, फस्को फजूर का सद्देबाब, अमनो अमान का क़याम, इस्लाम का बोलबाला, क़ुर्ब क़यामत की वो हकीकतें हैं कि जिनके ज़हूर का तज़किरा अहादीस की तमाम कुतुब बाशमूल सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इन अहादीस के रावियान में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समेत दीगर सहाबाए कराम शामिल हैं। इन अहादीस में आप अलैहिस्सलाम के नज़ूल की तफसील और जगह का बयान है। आप अलैहिस्सलाम दिमिश्क में मनारा शर्किया के पास उस वक्त उतरेंगे जब फजर की नमाज के लिए अकामत हो रही होगी। कहा जाता है कि उनके दौर में सब मुसलमान हो जाएंगे। दज्जाल का कत्ल भी आप अलैहिस्सलाम के हाथों होगा, और याजूज माजूज का ज़हूर व फसाद भी आप अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में होगा। बिलाखिर आप ही की बद्दुआ से उनकी हलाकत होगी, जैसा कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, जरूर एक वक्त आएगा कि तुम में इब्ने मरियम हाकिम व आदिल बनकर नाजिल होंगे। वो सलीब तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल कर देंगे, जिजिया उठा देंगे, और माल की इतनी बहुतात हो जाएगी कि कोई उसे कबूल करने वाला नहीं होगा, यानी सदका और खैरात लेने वाला कोई नहीं होगा, हत्ता कि एक सजदा दुनिया और माफिहा से बेहतर होगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि सूरह आल इमरान की आयत नंबर 55 में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने रसूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 5 वादे फरमाए। सबसे पहला वादा यह था कि उनकी मौत यहूदियों के हाथों कत्ल के जरिए नहीं होगी, बल्कि तिबई तौर पर वक्त मुकर्ररा पर होगी, और यकीनन वो वक्त क़यामत के नजदीक आएगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से जमीन पर नाजिल होंगे। दूसरा वादा आलम बाला की तरफ उठा लेने का था, ये उसी वक्त पूरा कर दिया गया। तीसरा वादा उन्हें दुश्मनों की तोहमतों से पाक करने का था, वो इस तरह पूरा हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और यहूद के सब इल्जामात की तरदीद कर दी। चौथा वादा आप अलैहिस्सलाम के ताबेदारों को आप अलैहिस्सलाम के मुनकरीन पर क़यामत तक गालिब रखने का था। चुनाचे तारीख गवाह है कि नसारा और मुसलमान गालिब रहे और उन्हीं की हुकूमतें दुनिया में कायम हुई और रहेंगी। पांचवा वादा क़यामत के रोज उन मजहबी इख्तलाफात का फैसला फरमाने का है जो आप अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक हैं। दोस्तों, ये थे हालात व वाक़यात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हवाले से। सिलसिला कससुल अनबिया की ये आखिरी वीडियो थी। इस सिलसिले की वीडियोस में हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक कुल 27 अनबिया कराम का ईमान अफरोज तज़किरा किया है, जबकि खातमुल अनबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक भी हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से अपने चैनल पर कर चुके हैं। जिन बहनों और भाइयों ने कससुल अनबिया के इस सिलसिले में दिलचस्पी का इजहार किया और अपनी कीमती आरा से नवाजा, इस पर उनके शुक्रगुजार हैं, और अल्लाह ताला से इस हकीर सी कोशिश की कबूलियत
اور اس میں ہوने والی غلطیوں اور کوتاہیوں سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، آمین۔ پھر حاضر ہوں گے کسی نئی ویڈیو میں۔